Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. My name is Iman and I'm going to be your mentor for graphic designing basic program. For the next 5 weeks, we're going to learn different of the things. Before starting, make sure that you guys do not use the annotations. I log that too. And yes, of course, I can see who is doing that. So I'll kick you out of the meeting, right? तो बेहतर है कि आप लोग ये ना करें. Just give me 2 minutes. I'm just waiting for most of the participants to join in and then I'll officially begin. Okay, so I've already introduced myself and I'd like to have the introductions of you guys too, just to make this session comfortable for everyone. Since it's the first session, you must have not known me before. You must have taken some of the courses that has been recorded by me and presented by our team of Insider. I'll go into detail. We'll discuss first of all about our company. We'll discuss about what we're going to learn in the upcoming 5 weeks, and we'll discuss different of the things today and also the introduction towards the graphic designing basic, right? But before moving towards that, I want to know about you guys. So since I told you already, my name is Iman and I am studying in Pearson College, London. I'm doing my H&D in business program. I've been into Insider since 3 years from the very start, since I'm the chief operating officer as well as the co-founder for Insider. Okay, so I'm currently 20 and I'll be teaching you the graphic designing. So just make sure that you guys type in the chat box that what you're currently studying, what kind of qualification you have, and from which city do you belong to or which country. Yes, everyone, I'd be looking towards the chat box. Zulkarnain, आपकी voice off है. You do not have to unmute yourself until I say so. So you just have to use the chat box option. Yes, everyone, please type in. I just want to see कि आप लोग जो हैं किस कौन सी क्वालिफिकेशन से जो हैं वो बिलोंग करते हैं और ये भी स्टेट करें कि आपका प्रीवियस क्या एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिजाइनिंग में. अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो वो भी मुझे बताएं. एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो सम kind of graphic designing and you've completed some kind of projects, do let me know that too. Yes, everyone. ठीक है, आप मुझे प्राइवेट इनबॉक्स भी कर सकते हैं. नो इशू. Okay, great. Okay, so just let me know. Okay, Moaz, you're a new student. Great. Just let me know if my voice is clear and should I just begin with my lecture. Okay. Okay, so I'm just reading the messages. My name is Babar. I've currently done my BBA graduation from Medcare University and I live in Karachi. So you are quite familiar with Canva. ठीक है, ग्रेट. तो हम बेसिक जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में सिर्फ कैनवा ही सीखेंगे, लेकिन उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हम सीखेंगे. हमारे पास एडवांस भी अवेलेबल है ग्राफिक डिजाइनिंग, बट दैट इज व्हाट नॉट आई एम टीचिंग, दैट्स व्हाट मिस किरण इज टीचिंग. आई एम अ लेक्चरर. ओके, आई एम फातिमा फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम अ न्यू स्टूडेंट. ओके फातिमा, ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहले आई वॉन्ट जस्ट जंप ऑन टू द टॉपिक आई हैव. ठीक है, मैं आपको पहले डिस्क्राइब करूँगी कि हम जो है क्या क्या इस बेसिकली कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे और इस जो प्लेटफॉर्म को आपने चूज़ किया है इससे आपको एडवांटेजेस क्या होंगे. क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि जो कोर्स हमने चूज़ किया हमें इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, हमें इसकी सर्टिफिकेशंस क्या मिलेंगी. क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, राइट. तो हमें जितनी भी सर्टिफिकेशन जो है हमें वो कलेक्ट करनी होती हैं, हमने अपनी सीवीज में एंटर करनी होती हैं, या हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है लेटर, या हमने किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना होता है. तो हम बेसिकली उसी के लिए जो है अपनी सर्टिफिकेशन एक अच्छे प्लेटफॉर्म से देख रहे होते हैं.
तो एक इनसाइडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपने ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स और भी देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, लेकिन आपको उनकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता होता है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं जब आप ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा अगर हम इनको फ़ी देंगे भी तो क्या ये वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो बेसिकली हम चाहते हैं, या जो चीज़ लिखी हुई है, या फिर जो ये सर्टिफिकेट और रिकमेंडेशन लेटर हमें देंगे उसकी क्या वर्थ है, राइट? ये हम सबके क्वेश्चन जो है माइंड में आते हैं। ये नॉर्मली बहुत नॉर्मल बात है। अगर मैं कहीं पे कोई ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ तो सबसे पहले मैं जाकर रिव्यूज़ देखती हूँ, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन का दौर है, इसमें आप कह सकते हो कि रिव्यूज़ वगैरह भी किसी भी किस्म के लेके तो आप व्हाट्सएप पे किसी के लगा सकते हो। आपको नहीं पता होता कि कहाँ पे जो है वो एडिट हो जाए चीज़ें। जैसे अब मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाने लगी हूँ, तो आपको भी एडिटिंग आ जाएगी, तो आप भी कोई भी चीज़ एडिट करके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसकी क्लैरिफिकेशन मैं कर देती हूँ आपको। आप सबने जो है इनसाइडर का ऑलरेडी पेज देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मेरी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने ये ओपन इसलिए किया ताकि मैं आपको डिफरेंट हाइलाइट्स के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को समझा सकूँ, राइट? सबसे पहले तो हम चलते हैं सर्टिफिकेशंस के ऊपर। जो पहली हमारी हाईलाइट है हम वो देख लेते हैं। सर्टिफिकेशन वाली हाईलाइट मैंने ओपन कर लिया, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट लोगों को जो है सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। अब अक्सर क्या होता है कि जहाँ पे आप कहते हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू डिफरेंट चीज़ें एडिट होके भी लोग सर्टिफिकेशंस और वो वगैरह चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट हाइलाइट्स में जिन्होंने भी सर्टिफिकेशंस दिए हुए हैं उनको वो रिसीव हुए हुए हैं इन हार्ड कॉपी सर्टिफिकेशंस, और वहाँ पे जो है उनके नेम्स भी मेंशन है। जो एक क्वेश्चन हमारे पास मोस्टली आता है वो ये कि आप लोग सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेशंस क्यों नहीं देते? तो अब जब आप लोग भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनोगे तो आप लोग ये मेरे से ये बात एग्री करोगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर को जब एडिटिंग आ जाती है तो वो डिफरेंट लोगों के प्रोजेक्ट्स करता है, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन देती हूँ, आपका कोई दोस्त कहता है यार मैं तो 2000 रुपीज़ का ये कोर्स नहीं ले रहा, मुझे तो सिर्फ सर्टिफिकेशन चाहिए और तुम्हें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तुम मुझे एडिट करके वो सर्टिफिकेट दे दो, राइट? आप उसको एडिट करके सर्टिफिकेट देते हो या कोई और भी उसको एडिट करके सर्टिफिकेट दे देता है। आप दोनों एक ही जगह जॉब के लिए जाते हो, ठीक है? अब उसमें होता ये है कि आप दोनों के पास सेम सर्टिफिकेशन है, सेम डेट्स की हैं, ठीक है? अब उसकी स्पीकिंग स्किल्स आपसे बहुत अच्छी होती हैं, या कोई ऐसी चीज़ आती है, या वो पहले आपसे इंटरव्यू देने चला जाता है और वो सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी सर्टिफिकेशंस की वर्थ जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि उस बंदे ने तो कुछ सीखा ही नहीं। उसको तो कुछ आता ही नहीं था, उसको तो सिर्फ आपने सर्टिफिकेशन बना के दी और उसने वो यूज़ कर ली, ठीक है? दिस इज़ वाई वी डोंट रिकमेंड ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, कि हम आपको हार्ड कॉपी सर्टिफिकेशन दें जिसमें हमारी स्टैम्प्स हों, क्योंकि साइंस और स्टैम्प्स को कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो एक प्रिंट भी करवा लेते हैं सेम टू सेम, तो हमारा पेपर भी डिफरेंट है, वो भी प्रिंट नहीं हो सकता, और अगर वो प्रिंट इन केस हो भी जाता है सिमिलर पेपर के थ्रू, इतना अंदाज़ा नहीं होता, तो साइंस और स्टैम्प जो हैं जो आपके सर्टिफिकेट पे हैं वो किसी जो जाली सर्टिफिकेशंस के ऊपर है वो नहीं हो सकता, ठीक है? पहली तो ये चीज़। और ये जो है सर्टिफिकेशंस आप देख सकते हो, सर्टिफिकेशंस में भी हमारे पास दो वेरिएंट है। एक हमारी सिंपल सर्टिफिकेशन है जिसमें सर्टिफिकेट दोनों पैकेजेस में सेम है, गोल्डन भी और सिंपल भी। और जो हमारा लेटर है वो ये वाइट कलर में भी है और इसके अलावा गोल्डन कलर में भी है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा लेना है। दोनों की वर्थ जो है वो सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना ये है कि एक प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टैम्प लगी हुई नजर भी आ रही होगी, और ये देखें इसमें भी साइन हुए हुए हैं और साथ स्टैम्प लगे हुए हैं, ठीक है, लेटर के अंदर भी। तो ये कोई चीज़ जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? इसका मैं थोड़े से और भी आपको हाइलाइट्स दिखा देती हूँ जो लोगों के रिसीव हुए हुए हैं, या आप बाद में खुद भी इंस्टाग्राम पे जो है इजीली विजिट कर सकते हो। ये आपको सर्टिफिकेट और गोल्डन लेटर्स भी जो हैं सबके नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी? ये देख लें जी, ये रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, इसमें गोल्डन भी हैं और इसमें आगे आपको सिंपल भी नज़र आएंगे, ठीक है जी? इसके बाद ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो गोल्डन और सिंपल में दोनों में सेम है, सिर्फ लेटर का डिफरेंस है। और ये इसके बाद हमारी फाइल्स है जिसके अंदर रेडी होके आपको आपके सर्टिफिकेशन जो है पर प्रोग्राम 2 सर्टिफिकेशंस आपको पार्सल होते हैं। जैसे अगर आप में से कोई इसके अलावा भी कोई प्रोग्राम में है तो उसको एक सर्टिफिकेट और एक लेटर, दोनों चीज़ें पर प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी, ठीक है? उसके अलावा आप रिकमेंडेशन वाली जो है वो भी चेक कर सकते हो, हाइलाइट्स, ठीक है? उसके बाद हम हायरिंग भी डिफरेंट करते रहते हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है इनसाइडर के कोर्सेज का पार्ट होने का, कि जब आप हायरिंग के लिए अप्लाई करते हो हमारे पास आपका प्रीवियस रिकॉर्ड ऑलरेडी होता है, तो हम आपके अगर स्किल्स उसके अप टू मार्क हैं तो हम आपको ही प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू कोई नया बंदा आके हमें जो फॉलो करता है या फिर हमें अपने साथ जो है सीवी शेयर करता है, ठीक है जी? ये आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हो, एनरोलमेंट प्रोसेस, ठीक है? अगर आपने अपने फ्रेंड्स को सेटिस्फाई करना हो या अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना हो कि वट एवर
payment you are making to insider, it is in safe hands, and of course there are so many people applying to it. आपने खुद भी देखा होगा, आपका ग्रुप नंबर 3 है आई गेस, यहाँ पे ग्रुप नंबर 4 है। इसके बाद ये आप हमारी फीडबैक हाइलाइट्स देख सकते हो, ठीक है जी, इसमें सारे फीडबैक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप हमारी रीच चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक रीसेंट चेंज जो अभी आया है वो ये है कि इनसाइडर जो है वो अब यूके से भी सर्टिफाइड है, यानी जो भी आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे वो आपके इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड हैं, ठीक है। आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अगर कोई प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो उनकी हो सकता है रजिस्ट्रेशन सिर्फ पाकिस्तान में हो, तो यहाँ पे आपको डबल एफ ये मिलती है चीज़ कि आप बिल्कुल लो रेट में जो अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप हमारी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हमने सारा अपना मेंशन किया हुआ है, ऑफिस हेड और ऑफिशियल नंबर। इसके बाद ये आप हमारा डॉक्यूमेंट देख सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट पे नहीं यकीन आ रहा तो आप गूगल पे जाके इजीली यूके की जो ऑफिशियल साइट है उस पर क्लिक करके इस तरह ही एंटर करके नेम इजीली हमारी फाइलिंग जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आप देखोगे यूके की ओरिजिनल जो है वेबसाइट है, और ये इस तरह ओपन हो जाता है, ठीक है। ये आप खुद भी देख सकते हो बाद में, और यहाँ पे लिंक भी अटैच है, इसको क्लिक करके भी आप बाद में चेक कर सकते हो। हमारे डिफरेंट ऑनलाइन वेबिनार्स भी होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। उसके बाद हमारी एम्बेसडरशिप की हायरिंग भी होती है, आप लोग अपनी प्रोग्राम के बाद भी एम्बेसडरशिप में एनरोल करके जो है स्टार्ट कर सकते हो अपनी एम्बेसडरशिप, और ये पेड एम्बेसडरशिप होती है। इसके बाद आप हमारे जो है बैच की एनरोलमेंट की देख सकते हो कितने लोग हैं इसके अंदर एनरोल्ड हैं, ठीक है। बैच स्ट्रेंथ जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद मैंने गोल्डन लेटर का आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये लॉन्च की बेसिकली है। मोर ओवर मैं आपको और भी दिखा देती हूँ, कोई चीज़ मेरे से रहेगी। मेरा मैक्सिमम आपको बताने का इन चीज़ों का मकसद ये ताकि आप आगे से अपने प्रोग्राम को एंजॉय कर सको, आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको लेके आप नेक्स्ट सेशन जो है वो एंजॉय ना करो, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज भी हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर जाके। उसके अलावा हम फेसबुक पे भी हैं, हम लिंक्डइन के ऊपर भी हैं, वहाँ से भी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन की हमारी दूसरी हाईलाइट भी है, इसमें आप क्लिक करने ना बाद में, और इसमें आप पाकिस्तान के भी हमारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप हमारी बाकी भी जो है इजीली देख सकते हो हाईलाइट्स, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कोई सर्टिफिकेशंस को लेके या कोई भी चीज़, आप अपने हैंड्स भी रेज कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है जूम में, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, और एल्स फिर आप टाइप भी कर सकते हो चैट बॉक्स में। आई विल वेट फॉर 1 minute if anyone has any question. Okay. अच्छा फातिमा, सर्टिफिकेशंस का एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस जो जो मैं आपको चीज़ें आपके कोर्सेज के अंदर जैसे रोज़ रोज़ मैं दूंगी आपको, आपने सिर्फ वो जो है वो टाइम पे करके मुझे सेंड करने हैं। और अटेंडेंस भी एज सच रिकमेंडेड नहीं है कि आप आओ रोज़ अपने सेशन जो अटेंड करो, क्योंकि सिंस एक सेशन है पर वीक में। लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं अटेंड कर पाते तो अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अटेंडेंस अगर आपकी कंपलसरी नहीं होगी तो वो आपका ही बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब रिकॉर्डिंग पोस्ट होगी आप फिर उसको देखोगे तो आप क्लास से पीछे रह जाओगे, आपका डेडलाइन पे काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्राइटेरिया बस यही है कि जो शॉर्ट शॉर्ट हम प्रैक्टिकल्स करेंगे विद इन द सेशन वो आपने मुझे देने हैं, और सारे प्रैक्टिकल्स जो है ना मैं वो आपको विद इन द सेशन ही अपने साथ साथ करवा लिया करूंगी, ठीक है। इस तरह ये है कि बाद में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, या बाद में आप नई चीज़ें करके मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं इसके ऊपर आपको क्रिटिक दे सकती हूँ, ठीक है। ओके, चलें अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं हमारे कोर्स की डिस्क्रिप्शन। ये हमारे कोर्स की डिस्क्रिप्शन है। पहले हमने इंट्रो करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको क्यों करते हैं, ये क्या होती है और क्यों करना चाहिए, और इससे किस किस्म का जो है हम आगे अर्निंग पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कैनवा, वो हमारा सेकंड सेशन होगा जिसमें हम कैनवा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसमें हम बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क हम सेकंड सेशन से स्टार्ट करेंगे। आज हम अपनी बेस बिल्ड करेंगे, उसके बाद ये सारी एडिटिंग ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ जो है वो नेक्स्ट सेशन से जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। कैनवा प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं जुल्करनैन। अब पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये एक बात कहती हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना या फिर फ्रीलांसिंग या कोई भी ऐसा स्किल जो है इसके लिए ना प्लेटफॉर्म नेसेसरी नहीं होता।
अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो और अगर आपको एक गंदा सा पेपर भी मिल जाता है ना, तो आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप उस पेपर के ऊपर भी कर सकती हो। अच्छा, आप मनाहिल हो तो आप नेम चेंज कर लो ना उसके ऊपर, तो मुझे मेरे लिए इजी हो जाएगा याद रखना आपका नेम। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम से ना अपना नेम चेंज करके आना। आई थिंक आपने अपना ये मेल भी आपने ही दिया हुआ है अपना व्हाट्सएप में, तो वो भी आप अपने नेम्स का देंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा रेक्टिफाई करना। ठीक है। अच्छा, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग, हाँ, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आपको कोई गंदा सा पेपर भी मिल जाता है, इवन कि न्यूज़पेपर भी मिल जाता है, तो उसके ऊपर भी आप ड्राइंग अच्छी से कर लेते हो। तो ये प्लेटफॉर्म की बात नहीं होती, ये आपके जहन की क्रिएटिविटी है जिसको आपने निकालना है, जिसको आपने अपने माइंड में सोचना है कि अच्छा हम ये चीज़ ऐसे भी लेके चल सकते हैं। ठीक है। सो ये ग्राफिक डिजाइनिंग की हमारी जो है कोर्स की डिटेल्स थी। अब हम चलते हैं, मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब मुझे ज़रा येस करके चैट में बता दें कि आपको मेरी स्लाइड्स नज़र आ रही हैं आप सबको। ठीक है, ग्रेट। ठीक है। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले अब हमने डिस्कशन करनी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैंने ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखी हुई हैं ताकि बाद में आप लोग जो है वो इसको इजीली देख सको। मैं इनको बिल्कुल भी रीड आउट नहीं करूंगी, मैं आपको बहुत जनरल एग्जांपल से हर चीज़ समझाऊंगी। ठीक है, ताकि आप सबको जो है ये चीज़ें याद रहें, जब हम अगला प्रैक्टिकल सेशन करेंगे उसमें ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हाट इफ ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ है, इनसाइडर का लोगो लगा हुआ है, नीचे एक पिक्चर है, इलस्ट्रेशन है, सारा कंटेंट लिखा हुआ है। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है? मतलब ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई है ये भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग है? जस्ट राइट अ येस एंड नो इन द चैट बॉक्स ताकि हमारी कम्युनिकेशन जल्दी जल्दी और हम चीज़ों को प्रोसीड करें। क्या लगता है आप सबको? ठीक है, मोस्टली कह रहे हैं यस, बिल्कुल ये ग्राफिक डिजाइनिंग। अब मैं आपको समझाती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली हर वो चीज़ है जो आप कंप्यूटर के ऊपर बनाते हो, कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन करते हो। आजकल क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है ना, तो अगर मैं एक पिक्चर भी एडिट करती हूँ ना, तो वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है एडिटिंग। आप एक न्यूज़पेपर को जो है न्यूज़पेपर को प्रिंट करते हो, लेकिन प्रिंट करने से पहले वो न्यूज़पेपर कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन होता है, तो वो जो डिज़ाइन है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। प्रिंट के बाद तो जो वो प्रिंट विजुअल बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ विजुअल कम्युनिकेशन है ना, जो चीज़ ऑनलाइन है, वो हर चीज़ ग्राफिक डिजाइनिंग है। कोई आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो, आप कोई पिक्चर क्लिक करके उसको एडिट करते हो, उसमें इफेक्ट्स डालते हो, वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है। आपने किसी के प्रोडक्ट के लिए कोई पैकेजिंग डिजाइन की है, उसके बाद वो उसको प्रिंट करवाता है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग के अंदर हमारा आर्किटेक्चर वाली फील्ड भी आती है। आर्किटेक्चर्स भी पहले जो है उस चीज़ को पहले माइंड मैपिंग करेंगे, पहले वो पेपर के ऊपर तो खैर अब बहुत पहले जो है लोग पेपर के ऊपर स्केचिंग करके चीज़ों को बिल्ड करते होते थे। अब तो इजीली इतनी वेबसाइट्स, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि आप ऑनलाइन भी हर चीज़ को इजीली अरेंज करके फिर इसका प्रिंट आउट इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। सो हर वो चीज़, जैसे ब्रोशर्स हैं, कंपनी के लोगोज हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं, पोस्टर्स हैं, साइंस हैं, जो भी चीज़ है, जो भी ऑनलाइन चीज़ आपको नजर आती है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। मैं इनसाइडर का पेज दोबारा खोल लेती हूँ। ये जितनी भी पोस्ट आपको नजर आ रही है ये सारी ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर, ये व्हाट इज अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनर वो बंदा है, वो आर्टिस्ट है, वो डिजाइनर है जो हर चीज को प्लान करता है, हर चीज को एनालाइज करता है। ठीक है। अतः हर चीज को जो फॉर्म में लाता है ना ऑनलाइन, वो ग्राफिक डिजाइनर है। अब यहाँ पे मैं बड़ी आपसे कॉमन चीज जो है, हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको पहले भी एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आप सबके साथ ये जो स्लाइड लेके आई हूँ, इसमें मैं सिर्फ कंटेंट लिखती, मतलब मैं लिखती व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनर, उसके बाद मैं सारी इसकी इंफॉर्मेशन लिखती, लेकिन मैं ये पिक्चर्स ना डालती, मैं ये इनसाइडर का लोगो ना डालती, तो आपके माइंड में क्या होता? मतलब आपको लगता कि ये एक कोई अट्रैक्टिव चीज़ है? क्योंकि मेरे लिए अगर मैं कोई बुक भी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है अगर उसके साथ कोई किसी किस्म की कोई पिक्चर्स आ रही हैं। एक बंदा जो है ना माइंड में सोचता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो इसके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं हो भी रही हैं, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे परफॉर्म हो रहा है। तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं कि आप में से कितने लोगों के लिए पिक्चर्स के साथ स्लाइड्स इंटरेस्टिंग है और कितने लोगों के लिए पिक्चर्स के बगैर स्लाइड्स इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन में अगर आप एक चीज पिक्चर डाल ही नहीं रहे तो आप उसको अट्रैक्टिव जो है वो इजीली बना ही नहीं सकते। मेरी आवाज किसको नहीं आ रही?
अच्छा जवेरिया, आपने अभी ज्वाइन किया, आप ना दोबारा रीज्वाइन करो, या फिर आप देखो आपने ऑडियो कनेक्ट किया है मीटिंग का कि नहीं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक जो चीज़ है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ना याद रखनी है। इसी तरह पिक्चर की हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इमेजेस एंड वीडियोस मेक एनी डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव। ठीक है, इवन कि हम इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो जब तक कोई पिक्चर नहीं लगी होती, इतना कुछ बीच में उन्होंने ठूंसा होता है, कभी कुछ लिखा होता है, कभी कुछ लिखा होता है, हम तो बॉदर भी नहीं करते उसको पढ़ना, अनटिल अनलेस उसमें कोई पिक्चर हो, या अगर उसमें किसी प्रोडक्ट की सेल हो रही हो तो उस प्रोडक्ट की पिक्चर हो, तो फिर हमें अगर वो अट्रैक्टिव लगे तो हम रुक के अच्छा उसका खोलते हैं, कभी कभी हम फॉलो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ग्राफिक डिजाइनिंग डिफर करती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सब कुछ स्टेट करती, जैसे ये व्हाट इज अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ये डू नॉट बॉदर द लाइंस, क्योंकि ऑनलाइन तो रफली फिर ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके अलावा मैं ये सारा कंटेंट भी लिखती ग्राफिक डिजाइनर वाला। अब मैं क्या करती, मैं ये वाली पिक्चर जो है वो ना डालती। ठीक है, मैं पिक्चर ना डालती, और आप सब माइंड में मैपिंग जो है वो करते रहते हैं कि अच्छा मिस ने ग्राफिक डिजाइनर की जो है सारी इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट्स दे दिए हैं, लेकिन ये ग्राफिक डिजाइनर कैसा होगा, लाइक वो बंदा किस चीज पे काम करता होगा, क्योंकि जो बंदा न्यू है इस पे, उस पे तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि मिस ग्राफिक डिजाइनिंग फोन पे हो जाती है, या इसके लिए लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारे माइंड में आती है, लेकिन इसको डिफाइन हम किस तरह करते हैं कि या तो आपको किसी से पूछना पड़ता है, या फिर आपको खुद ही सोचना पड़ता है, आप गूगल करते हो एक्सेट्रा, वो कहेंगे जी लैपटॉप जरूरी है या ऐसा कुछ जरूरी है, लेकिन हमारे बेसिक वाले कोर्स में जो है लैपटॉप नेसेसरी नहीं है। मैं इसलिए लैपटॉप को सिखाऊंगी क्योंकि अगर मेरी स्क्रीन छोटी हो जाएगी फोन के ऊपर तो आपको सबको ब्लर नजर आएगा, लेकिन मैं साथ साथ आपको गाइडेंस दूंगी कि आप में से जो लोग भी फोन के ऊपर यूज कर रहे हैं उनके लिए वो ऑप्शन जो है लैपटॉप वाली वो किधर आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और एग्जांपल जो है हम वो ले लेते हैं, और वो ये कि मैं जो है ये पिक्चर आपको दे देती। ठीक है, ये सारा कंटेंट जो है ये ना होता। ठीक है, ये जो है मैंने मार्क किया था ब्लू में, ये कंटेंट अवेलेबल ना होता, और ये सिर्फ पिक्चर आपके पास होती। तो इस पिक्चर को देख के अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं ज्यूम करूंगी कि शायद ये बच्चा होमवर्क कर रहा है, या मैं ये जूम करूंगी शायद ये एक आर्किटेक्ट है जो गूगल से शायद कोई पिक्चर देख के बना रहा है, या हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि ये एक एम्प्लॉय है जो अपने बॉस के लिए कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। ठीक है, आप में से कोई इसमें से सोचेगा कि क्या पता ये डॉक्टर हो और ये किसी की रिपोर्ट्स एग्जामिन कर रहा हो। आप में से फिर कुछ सोचेंगे कि क्या पता ये टीचर हो, ये किसी का लेक्चर रेडी कर रहा है। ठीक है, तो जब आपको ग्राफिक डिजाइनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दिया जाता है, आप ब्लैंक हो जाते हो, मतलब आप डिफरेंट चीजों को सोचना शुरू कर देते हो। और जब आपको सिर्फ पिक्चर दी जाती है और कंटेंट नहीं होता, तब भी आप ब्लैंक हो जाते हो और आप डिफरेंट चीजों को सोचना शुरू कर देते हो। अब हम में से कोई भी ये ना सोचता कि ये ग्राफिक डिजाइनर है, हम कभी भी नहीं सोच सकते, हम रैंडम चीजों तक जाएंगे जहां तक हमारा जहन जाएगा कि ये टीचर है, ये प्रोफेशनल ट्यूटर है, ये डॉक्टर है, ये लेक्चरर है, ये स्टूडेंट है, ये सब कुछ हम में से ऑब्वियसली हम सारे यही सोचेंगे। लेकिन जब ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट के अंदर हमारे पास कंटेंट भी होगा, हमारे पास पिक्चर भी होगी, तो हमारा जहन कहीं और जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो कि जब हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल हैं एक पोस्ट के ऊपर, तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत क्या है। हम पिक्चर को देखेंगे, हम लिखा हुआ पढ़ेंगे, हमें समझ आ जाएगा कि अच्छा ये इस पिक्चर को डिफाइन कर रहा है। हम लिखा हुआ पढ़ेंगे, हम पिक्चर को देखेंगे, हम कहेंगे ओके ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर या शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, तो अपनी पोस्ट को हमेशा हमने ऐसा बनाना है कि जो देखने वाला है, जो व्यूअर है, उसका दिमाग कहीं और मत जाए। ठीक है, अब एक और चीज इसके अंदर हम देखते हैं। अब आप सबका ये क्वेश्चन होगा कि हम सबको पता है हम इनसाइडर के प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल हुए हैं, तो ये यहाँ पे लोगो क्यों है पर हर स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब हर पोस्ट के अंदर जब आप लोगो ऐड करते हो ना, लोग जो सारे लोग होते हैं ना जिन्होंने आपका लोगो देखना है, उन सबको आपका लोगो मेमोराइज हो जाता है। ये लोगो आप हर पोस्ट पे, इंस्टाग्राम में जितनी आप किसी क्लाइंट के लिए पोस्ट बनाते हो, आप जब भी उनका लोगो यूज करोगे, हर पोस्ट पे यूज करोगे, जैसे कोई पोस्ट आएगी वहां पे डिस्क्रिप्शन हो ना हो, एक टाइम आए जहां पे आपको अपना यूजर नेम चेंज करना पड़े, वो इंसान जैसे ही कंपनी का लोगो देखेगा उसको याद आ जाएगा अच्छा ये तो इनसाइडर का लोगो है, या अच्छा ये तो इस कंपनी का लोगो है। जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं लिखा होता,
और कोका कोला का या किसी भी कैनवा का जिसको हम यूज करने लगे हैं एज ग्राफिक डिजाइनिंग, उसका लोगो आ जाता है, तो क्या हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं विदाउट वॉचिंग के उसके नीचे क्या चीजें लिखी हुई हैं? वो हम किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं? वो हम ऐसे रेक्टिफाई कर सकते हैं कि उस लोगों को उन्होंने हर चीज की एडवर्टीजमेंट के ऊपर इतना यूज किया है कि हमें वो चीज अब याद हो गई है। हम हर चीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये किस चीज का लोगो है। मेरी स्क्रीन के नीचे आप सबको ये आइकन्स नजर आ रहे हैं मेरे लैपटॉप के? आई डोंट नो कि आप लोगों को ये स्क्रीन में अवेलेबल इजीली नजर आते हैं कि नहीं। जस्ट से यस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो कि अब ये देखो इंस्टा का जो लोगो है, अब यहाँ पे इसने मुझे बताया है कि मैं इंस्टा का लोगो, मैं इसको देखूंगी तो मैं इसको क्लिक करूंगी तो मुझे पता चलेगा ये इंस्टाग्राम है। मैं इसको क्लिक करूंगी तो मुझे पता चलेगा फेसबुक है। इसको क्लिक करूंगी तो मुझे पता चलेगा जी ये तो ब्राउजर है, ये जूम है, ये डाउनलोड्स है। अब हमें कैसे ये चीजें पता है? जब ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं या AIPS, ये जो भी है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, व्हाट्सएप है, ये जब भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये अपने लोगों को इतना यूज करते हैं कि हर बंदे को इनका लोगो जो है वो याद हो जाता है। ठीक है, एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे, आप जितनी भी स्लाइड्स देख लो, सारी स्लाइड्स के राइट कॉर्नर पर ही लोगो क्यों लगा हुआ है? मतलब मैं चाहती तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड का लोगो में थोड़ा चेंज कर लेती, कभी मैं राइट बॉटम में लगा देती, कभी मैं लेफ्ट बॉटम में लगा देती, कभी मैं अपर राइट पर लगा देती, लेकिन इस तरह क्या होता, हमारी स्लाइड्स फंकी हो जाती, उनका कोई फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, सो ये उसके लिए कि जब आप फ्यूचर कोई डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर रहे होगे, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का, तो पावर पॉइंट की जगह जब आप कैनवा पे स्लाइड्स क्रिएट करोगे ना, एक तो वो बहुत डिफरेंट होंगी, आपका जहां दिल करे, जौन सा फॉन्ट दिल करे, आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। वर्ड में तो ऐसा होता है ना, जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो कि जहां आपने पिक्चर ऐड की है वहां उसके पास आप अपना जो है टेक्स्ट एडजस्ट नहीं कर पाते, वहां पे स्पेस आ जाती है बीच में, और यहाँ पे तो आप इजीली कोई भी चीज उठा के कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, सो जस्ट टू क्रिएट अ फॉर्मेट, अब आपको पता है जब मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड करूंगी, आपको पता है कि ये जो मैंने बोल्ड करके हेडिंग दी हुई है और ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब है कि मिस ने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हुई हैं हर चीज में बोल्ड और अंडरलाइन क्या है, हेडिंग है। और हेडिंग के नीचे जो कंटेंट है वो सारा क्या है, सब है, सब कंटेंट है हेडिंग का। ठीक है, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आप में से किसी को भी नहीं बताऊंगी अच्छा ये देखो ये नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लोगो आ गया। आपका माइंड इतना यूज टू हो जाएगा कि इस स्लाइड के बाद आप खुद ही गेस करोगे कि हेडिंग क्या है, पिक्चर कहाँ है, लोगो कहाँ है, और आपका कंटेंट कहाँ है। यही चीज आपके टीचर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है जब आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो और एक चीज, हर चीज को जो है आप फॉर्मेट में लेके चलते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको मेरी बात समझ आ गई है? यस एग्जैक्टली, ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने आप में से किसी को भी नहीं बताया कि इसमें से हेडिंग क्या है, लेकिन फौरन आपको देख के से पता चल गया जो पॉइंट्स हैं वो हमारा कंटेंट है, जो अंडरलाइंड और बोल्ड है वो हमारा जो है हेडिंग है, और उसके अलावा जो यहाँ पे लोगो है वो कंपनी का लोगो है, जस्ट अ ट्रेडमार्क है। जो पिक्चर्स लगी हुई हैं वो बेसिकली किसको रेफर कर रही हैं, कंटेंट को रेफर कर रही हैं। ठीक है, अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिक डिजाइनर्स क्या क्या डेवलप करते हैं, ये मैंने सिर्फ आपकी इजीनेस के लिए रखा हुआ है, अगर आपने बाद में दोबारा स्लाइड्स देखनी होंगी तो वो आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद अब हम मेजर जो डिस्कस करेंगे ना वो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग है, और ये आप सुन के हैरान होगा कि जितनी चीजें हम इसमें लिखी हुई हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आता है जी ऑडियंस। ऑडियंस क्या होता है? जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग बनाते हो ना तो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आता है ऑडियंस, और इसके कुछ जनरल रूल्स हैं जो हमने देखने हैं। ऑडियंस बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके लिए आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग जो है पोस्ट बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कंपनी हायर करती है जो कि डिफरेंट स्नैक्स जो है सेल आउट कर रही है, ऑनलाइन कोई कंपनी है जो डिफरेंट ब्रांड्स के स्नैक्स सेल आउट कर रही है। ठीक है, अब अगर स्नैक्स की बात की जाए तो स्नैक्स में कोई एज बैरियर नहीं है, उसको एडल्ट्स भी खाते हैं, उसको ओल्ड पीपल भी खाते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं कम खाते हैं, लेकिन स्टिल वो एक जो है एज का ग्रुप का हमारे पार्ट है ऑडियंस का। हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलरली स्नैक जो है वो सिर्फ बच्चे ही खाते हैं। ठीक है, सो अगर मैं किसी ऐसी कंपनी का काम कर रही हूँ तो मुझे पता होगा मेरी ऑडियंस सारे के सारे लोग हैं जो भी इस कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर तो वो कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं है जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ, अगर वो कोई लोकल कंपनी है तो मुझे इजीली पता है कि वो ऑडियंस कौन सी है। ईच एंड एवरी सिटीजन प्रेजेंट इन द कंट्री आई एम वर्किंग फॉर इज माई ऑडियंस।
यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं निशात पे काम कर रही हूँ या मैं किसी और ब्रांड पे काम कर रही हूँ जो कि सिर्फ वुमेन क्लोथिंग पे वर्क करता है, ठीक है। अब सिर्फ एक एग्जांपल लो कि उस वुमेन क्लोथिंग में ना वो टीनेज तक नहीं बनाते कपड़े, वो बनाते ही ओल्ड एज लोगों के लिए, ठीक है। अब जब मैं कोई पोस्ट डिजाइन कर रही हूँ तो मेरी ऑडियंस क्या होगी? क्या वो टीनेजर्स होंगे? क्या वो छोटी बच्चियां होंगी? या क्या वो ओल्ड एज पीपल होंगे? ओल्ड एज वुमेन, ठीक है ना, ओल्ड वुमेन होंगी वो। और डेफिनेटली वो ओल्ड वुमेन होंगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो हम सेल ही ओल्ड वुमेन के लिए कर रहे हैं तो उनको ही हम टारगेट करेंगे एज अ ऑडियंस। अब आप देखो कि जब एक ओल्ड लेडी अपनी शॉपिंग करने जाती है तो मोस्टली 90% ऑफ योर ग्रैंड मदर्स आर गोइंग टू वेयर स्किन कलर्स, ब्राउन कलर्स। कोई रेड रेड पहन के नहीं घूमता, मतलब नॉर्मली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेडिंग और सम इवेंट्स जिसमें भी ऑल बाय डिफरेंट फंकी कलर्स, स्पेशली इन टीनेज, दैट्स वेरी कॉमन, ठीक है। लेकिन जनरली टॉकिंग वो बहुत डार्क कलर्स देखते हैं और इतनी चमकीले कलर्स कोई भी नहीं पहनता इन डिफरेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं कोई ग्राफिक पोस्ट जो है वो मैं डिजाइन करती हूँ, अब उसमें मैं पिंक कलर की पोस्ट बना रही हूँ, मैं डार्क रेड कलर की पोस्ट बना रही हूँ, मैं फंकी पोस्ट बना रही हूँ, तो क्या आप लोग को लगता है कि मैं सही टारगेट ऑडियंस कर रही हूँ? मैं अपनी ऑडियंस को सही टारगेट कर रही हूँ? मतलब इतने ब्राइट कलर्स के साथ आपको लगेगा कि जब ओल्ड लोग उस पोस्ट को देखेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे? कि इससे बेहतर ये है कि मैं माइल्ड कलर्स यूज करूँ, जिनको जिनको देखते इनको अच्छा लगे, वो हमारी प्रोफाइल खोलें, वो उसको विजिट करें, वो कहें कि हाँ ये वो कलर्स हैं जो बेसिकली हम पहनना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसमें हम लेते हैं, वो है कि अगर हम कैप्स बना रहे हैं और हम सिर्फ मेन के लिए सेल करते हैं, या हम कोई ज्वेलरी बना रहे हैं और हम मेन के लिए सेल करते हैं, ठीक है। अब उसमें ये मोटिव आता है कि अक्सर जो ज्वेलरी होती है ना मेन की, वो होती है सिल्वर और ब्लैक में। गोल्ड में भी होती है, लेकिन मैंने बहुत कम देखा है जो लोग गोल्ड कलर में पहनते हैं, या तो वो रियल पहनते हैं या वो नहीं पहनते, या फिर वो ब्लैक और वाइट ही पसंद करते हैं। तो अगर मैं कोई पोस्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैंने कैप या कोई कोई ज्वेलरी का कोई एसेसरी मैंने सेल करनी है, मैंने कोई ब्रेसलेट सेल करना, तो आपको लगता है कि जो मेरी पोस्ट का बैकग्राउंड कलर है वो पिंक होना चाहिए और उसके ऊपर मैं कोई उसकी ब्लैक कलर की एसेसरी लगाऊं और मुझे लगे कि मैं अपनी सही टारगेट ऑडियंस को ट्रैक कर रही हूँ और मैं उसको पोस्ट कर दूं? आपको लगता है कि जो बंदा जो है हमारी प्रोफाइल को विजिट करेगा उसके लिए वो अट्रैक्टिव होगा? क्योंकि जब हम कोई मेन की चीज सेल करते हैं ना, उनको ना पावर वाली चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये हमारी एक इमोशनल चीज है, साइकी चीज है, जिसको आप जो है समझ सकते हो। तो उस पे मैं कोशिश करूंगी कि मेरा बैकग्राउंड जो है किसी लॉयन का बैकग्राउंड हो, मतलब ब्लैक कलर के वॉलपेपर्स आपने अक्सर देखे होंगे, इस तरह के काफी होते हैं। या कोई स्मोकी बैकग्राउंड हो, कि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हो और उसके ऊपर कोई वाइट सा धुआं हो या ऐसा करके कोई शेड हो। या फिर मैं कोई ऐसी बैकग्राउंड पोस्ट लूंगी जिसमें ना ग्रेश ब्लैकिश सा जो है कोई टेस्ट आ रहा हो, उसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर लूंगी पीछे से, ताकि वो बैकग्राउंड और हमारा जो आगे प्रोडक्ट आना है वो मिक्स ना हो जाए, ठीक है। सो इस तरह की चीजें जो है ना वो मेल को बड़ी ज्यादा कन्विंस करेंगे कि वो ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लें, ठीक है। सो ये हमारा प्रिंसिपल वन था, ऑडियंस, जिसको आपने पहले रेक्टिफाई, सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट बनाने से पहले यही करना है कि मेरी ऑडियंस क्या है, ठीक है। ये हर चीज में फिट होता है, चाहे वो आपने लोगो बनाना हो, जाहिर सी बात है लोगो में भी आप देखोगे ना कि जिस कंपनी के लिए मैं लोगो डिजाइन करने जा रहा हूँ वो कंपनी क्या सेल करती है, राइट। सो ये जनरल ऑडियंस रूल्स थे, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिए हैं। इसमें जो मेजर चीज यही होती है कि जैसे आप देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक है और मैंने व्हाइट से लिखा हुआ है। अगर मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे येलो होता और मैंने व्हाइट से लिखा होता तो क्या आप सबको बैकग्राउंड अलग नजर आ रहा होता, या फिर वो जो प्रिंट उसके ऊपर लिखा हुआ है कंटेंट, क्या वो आपको सही तरह नजर आ पाता? वो हम में से किसी को सही नजर नहीं आता, वो ब्लर होता है, क्योंकि येलो और व्हाइट दोनों लाइट कलर्स है। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आपका ऊपर वाला टेक्स्ट लाइट हो, अगर आपका टेक्स्ट डार्क है तो पीछे वाला बैकग्राउंड लाइट हो। जैसे अगर येलो मेरे बैक पे होता और यहाँ पे मेरे व्हाइट की जगह रेड से जो है लिखा होता सब कुछ, जनरल ऑडियंस रूल्स वगैरह जितना भी कंटेंट है, तो फिर हमें वो चीज विजिबल होती, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग पोस्ट को या किसी भी चीज को ऐसे बनाओ कि हर बंदा इजीली जज कर सके कि इसने क्या चीज कहाँ रखी। ये नहीं कि आप हर चीज बीच में घुसाई जो और अगले बंदे को पता ही लगे कि उसने पढ़ना कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हर स्लाइड पे आपको इजीली पता लग रहा है कंटेंट कहाँ है और वो लोगो किधर प्लेस है, पिक्चर्स किधर हैं, हेडिंग कौन सी है। तो ये बहुत एक सिंपल लेआउट है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप हमारी इनसाइडर पे भी वापस चलते हैं, हम उसको भी देखो, तो इसमें भी आपको हर
पोस्ट में इजीली पता लग रहा है। यानी देखो ये बहुत चीज भरी नहीं हुई, इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट एक जगह पे मिल रहा है, क्यूआर कोड स्कैन एक जगह पे मिल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज बोल्ड है, दूसरी चीज आपको जो है लाइट नजर आ रही है, कंटेंट ग्राफिक डिजाइनिंग आपको पता लग रहा है ये है ही ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, ऊपर लोगोज हैं, इधर कंपनी का लोगो और इसके बाद जो है ऊपर इनसाइडर ऑनलाइन प्रोग्राम जो है लिखा हुआ है। ठीक है, सो इस तरह आपने चीजों को क्रिएट करना है कि हर चीज जो है वो सेपरेटली नजर आए। दूसरी जो मेन चीज है आपने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है कि जब भी आप कोई ग्राफिक डिजाइनर चीज जो है आप क्रिएट करे उसमें आपने याद रखना है कि ये चीज आप अपने लिए नहीं बना रहे, ये आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो या ये आप अपने कस्टमर्स के लिए बना रहे हो। तो इसमें वो चीज ऐड करो जो कस्टमर को पसंद है। हो सकता है अगर आप मेन की कोई चीज सेल कर रहे हो, आपको बैकग्राउंड में पिंक बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाओ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कलर ऊपर ब्लैक लगा दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की जो पसंद नापसंद है वो डिफरेंट होती है। लेकिन वहां पे आपने याद रखना है कि जो चीज आप क्रिएट कर रहे हो वो आपको नहीं, आपकी ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। सो अगर मैं ऑडियंस के बारे में सोचूंगी तो डेफिनेटली मैं अपना बैकग्राउंड मेन की एसेसरी सेल करते हुए उसको ब्लैक कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेन को ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, गॉट इट? यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस? ओके, सीइंग नन। नेक्स्ट हमारा आता है लेआउट। लेआउट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सिंपल लेआउट होना चाहिए जिसमें हर चीज का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज जो है कहाँ प्लेस है। ठीक है, अब इस मीटिंग का टाइम जो है वो 1 मिनट रह गया, आप लोग सेम मीटिंग लिंक से दोबारा मुझे ज्वाइन कर लें और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर एवरी वन, ज्वाइन इन विद द सेम लिंक अगेन।